Yes or no? This much Yes, idea. ma'am. Tell me. We'll do some mathematics first. Tell me trigonometry. How much you have known? Sin 90 plus theta कितना होता है? 90 minus theta. Like this, if I ask you cos 90 plus theta, is the board visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sin 90 plus theta, 90 minus theta, 180 plus theta, 180 minus theta. You should know. It should be in your tips. Whether mathematics department has done it or not, we don't know. Physics book, NCERT part 1 and 2, purchase. NCERT part 1 and 2. Then for reference you can take SL Arora. For reference you can take SL Arora or your coaching center books. Study materials of any coaching center you are having. Study materials of any coaching center you are having. Those who have not joined any coaching center, they should purchase it from the footpath. Best study materials, if I like, I can give you. It is for Brilliant Academy, or you can take it for Allen. Study materials, old, which you can collect. Fitji is also there, Akash is also there. Pave Education is also there, Baiju is also there. You can take a study materials for practice work. But the best one is your NCERT 1 and 2, SL Arora for CBSE level. For CBSE level. We will touch both the levels. Side by side, we will do some competition numericals also. So for a good practice work, you should have something else with you. For all chapters. Suppose it is dimensions. Now see, what is the rule here? Suppose we have done only dimension. Dimension for CBSE. This chapter will give you only 3 marks. For CBSE related exam, school exam. But for competition exam, it may give you 3-4 questions. After completing the CBSE level question, immediately we will do the practice from your competition books. What is our target? Our main target is JEE Mains. I think you all have understood. Those who are joining late, you should join before 11:45. Only 22 students are there. 29 is the strength. Now I see. Anyone who knows sin 90 plus theta, sin 90 minus theta? Yes. Sin 90 plus theta and sin 90 minus theta. Both are sin theta. Tell me, you know about this quadrant? Sin, cos, Yes, both are ma'am. positive or negative here. First quadrant. And all are positive. All Positive. positive. These are all positive. What is positive in the second quadrant? Sine, cos, Sin. Or third quadrant? tan, theta, theta. And cos. Tan. And fourth quadrant? Cos and sec. That means after school to college. Like this. What do you tell? After school to college. But nowadays there is no college because of lockdown. It is all silver teacup. Based on this, all are positive here. Sin 90 plus theta positive होगा negative होगा? Sin 90 plus theta positive or negative? Positive. Positive. Sin 90 minus theta. Sin 90 minus theta. Positive or negative? Positive. Cos 90 plus theta. Cos 90 plus theta. Negative. Cos Negative. 90 plus theta. If you find it in the equation, you will write it. What? Sin theta or cos theta? Negative में. Whether it is minus sin theta? Minus sine theta. It is minus sin theta. There is a chart in your all coaching center books or SL Arora. If you follow, you have to remember most of the cases. Suppose I have given you the equation here. It is tan 90 plus theta. Anyone? Tan 90 plus theta. कितना होगा? Tan 90 plus theta. Cot Minus theta or minus cot theta? minus cot theta. It is minus cot theta.
It is minus cot theta. Like this one table, I'll give you the pic. But you have to remember, these are our tools. Without this, physics is handicapped. Trigonometry में what we have to read. ये टेबल आपको पूरा याद रखना पड़ेगा. उसके बाद देखो, एक होता है is anyone who can tell me what is the value of theta if L is here, R is here? Anyone who can tell me? Theta is equivalent to L by R. is theta is equivalent to L by R. Arc divided by radius. Theta is equivalent to L by R. तो इसमें जो थीटा एंगल है वो थीटा एंगल किस में है? ये थीटा एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन. तो 1 रेडियन कितना है? 1 रेडियन. These are the mathematics things. You should revise it because we need it at every step. 1 रेडियन कितना होता है? Any idea? 180 by 5. यहाँ 2 पाई रेडियन. यहाँ से देख लो, ये आपका यहाँ से यहाँ तक पाई होता है, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई होता है. तो 2 पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री. तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 1 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री. 90 बाई पाई. 90 by pi. तो डिग्री में कितना होगा? 90 बाई पाई. डिग्री में यू शुड रिमेंबर इट इज 57.3 डिग्री. 1 radian is 57.3 degree. Because angular velocity, when this topic will enter, immediately you will find there is a need for conversion from radian to degree. Is it okay? These are all mathematical मैम 2 tools. पाई रेडियन. क्या? मैम 2 पाई रेडियन 360 डिग्री नहीं होना चाहिए. अच्छा, Yes, 2 pi radian 360 degree. It is pi radian. Pi radian is 180 degree. Ma'am, So 180 by 1 radian is 180 divided by pi. Then it is 57.3. As pi radian is 180 degree. Any problem? You should correct it immediately. Very good. That means you are active. There was a mistake here. Pi radian should be 180 degree. 2 pi radian should be equivalent to 360 degree. ठीक है? Theta is equivalent to L by R is a common formula for all of us. 1 degree. You all know 1 degree कितना minute कितना second? 1 degree minutes in seconds. 1 degree. Yes, tell me. 60 minutes. 4 minutes. 60 minutes. And 1 minute. 60 seconds. Okay. Next come to trigonometry. We are continuing. Sin theta के range क्या है? Sin theta के range क्या है? Sin theta is -1 to 1. perpendicular divided by hypotenuse. Sin theta का range है starting from -1 sin theta और कितना तक जाएगा? 1. +1. 1 or greater, smaller than equal to 1, not above 1. These are the common things in trigonometry, you know. Next, come back to okay. What other mathematics you need? Logarithm table you all know. Log table. कभी किए हो log table? No, ma'am. No. Yes, ma'am. Log table in chemistry you need also. In physics also you need. In chemistry also you need. सबसे ज्यादा आपको chemistry में चाहिए. √2 की वैल्यू कितना होता है? √2 1.414. 1.414. √2 is 1.414. अगर मैं इसको लिखूंगी log 2, अगर मैं इसको लिखूंगी log 2 बेस टू द पावर 10 कितना होगा? एनी आइडिया? नहीं, log कभी नहीं पढ़े हो. हम 0.3. Yes. How come you know? Tell me. ये आपको कैसे पता? मैम You जब studied? मैम ओलंपियाड्स वगैरह जो स्कूल में होते हैं उसके लिए पढ़ा था. Okay. Logarithm table will be available to you. You can find it out. But the common thing which we need, if it is written log m into n, what can I write it? Log m. Yes, tell Plus me. log Log m into n is log m plus log n. Multiplication means like this. If it is written log m by n, then you will write it
log m minus log n. माइनस log n, इतना ही काफी है आपके लिए। ठीक है, आगे आप लॉगरिथम टेबल आपको एक करना ही पड़ेगा। लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट विल आल्सो डू। ठीक है, log and anti log, then you come to, I'm just telling you how to do the mathematics. Now come to geometry. Geometry में if it is an equilateral triangle, सबसे common question ये physics का होता है, all the sides are L, equilateral triangle, you have to give me this distance from the centroid. This is the centroid point, let it be P A B C. This is the common question. In every chapter of physics you have to find out this distance. It is the distance from one vertices to the centroid. If all the sides are given L, anyone who can tell me what will be the distance? No. Minus 2 into 180 equals to. Find it and tell me. Just find it and tell me. I'm L by root 3. Very good. It is L by root 3. This one is L by root 3. You should remember it. OB is equivalent to L by root 3. Don't calculate it because L by root 3, suppose where you need, just you can see. आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया जाएगा टू फाइंड द फोर्स बिटवीन these two and these two. Then you have to add it in vector addition. Then you have to calculate. Then if you forget this distance, then the whole equations will be wrong. This is the logic. Physics needs mathematics for this only. ठीक है, फिजिक्स आपको मैथमेटिक्स क्यों जरूरत है? हर टाइप का ये, दिस इज द equilateral triangle you will find in every chapter. But if it is not equilateral, you should use the mathematics. If it is a right angle triangle and these two sides are equal, suppose ये L है, ये L है, can you find out this distance OB? Any logic you are having? Right angle isosceles triangle. मैम Because- एरिया इक्वल कर सकते हैं। My question is, why I am asking you? Here it is M. I have to find out the net force at this point. It is physics equation. But if you don't know this distance, you know this distance, you know this distance. But if you don't know this distance, you will not able to find it out. हमें क्यों जरूरत है, मैं हर क्वेश्चन के साथ समझा रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना आप फिजिक्स के फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। Is anyone who can tell me? अगर ये L है, L by root 2. is be louder. L by root 2. L by root 2. Ma'am, root Others 2 you L. are supporting L by root by 2. L by 2. Ma'am, root 2 L L. root 2. Root 2 L. See, I have got 3 answers here. This is simple geometry. I have got 3 answers. L by root 2. Someone is telling root 2 L. और भी कोई एक आंसर दे रहे। Which one is correct? मैम L by root 2 ही होना चाहिए। L by root 2 होना चाहिए. Okay, let me see. Here it is L, here it is L. What is the value of this one? L square plus N Root square 2L. under root? Root This one is 2L. 2L. Root 2L. यहाँ से ये इसका मिड पॉइंट होता है। ज्योमेट्री आपको देगा, हेल्प करेगा। ये इसका मिड पॉइंट होता है। तो रूट 2L अगर पूरा है तो यहाँ ये M to B तक कितना डिस्टेंस है? L by root 2. L by root 2. तो एक साइड आपका L by root 2 है और एक साइड L है। Can you find out? Is it 90 degree here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपका ज्योमेट्री यही परमिशन देता है ना? ये 90 Ma'am. डिग्री है। And it's 3L upon 4. L square upon 4. 3L square upon So 4. here it is L square minus इसके स्क्वायर L by root 2 के होल स्क्वायर अंडर Yes, रूट। ma'am. It's Yes, what coming is out the to be final 3L answer? Final 3L answer square क्या आ रहा है? upon 4. What is the final answer? L by root 2 or root 2L or something else? L by root 2. L by root 2. L by root 2. L by root 2 is the correct answer. You all are telling. Akshita. Where is Akshita? One name is here.
Yes, ma'am. Tell me. Is it Yeah. L by root 2? Yes, ma'am. L by root 2. Like this for all geometrical figures. हमारे पास ये नहीं, हमारे पास मास को रखना है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में आपको ये 4 मास यहाँ रख देंगे हम. What is the net force at this point? You should know this distance. अगर ये distance A है, ये सारे A है, it is a square. What is this distance? A by root 2. A by root 2. The answer is A by root 2. Root 2A. Export. क्योंकि ये root 2 times A, तो ये A by root 2 हो जाएगा. Like this, if it is a rectangle, here it is your A, here it is your B. Center is bisecting at 90 degree or not? Diagonals bisecting at the Yes. center at 90. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. ये diagonal सारे 90 डिग्री में bisect कर रहे हैं. स्क्वायर में भी करते हैं, रेक्टेंगल में भी करते हैं. Yes, ma'am. What your mathematics says? Anyone from? There are 25 to 29 students. 4 students joined late. स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, रेक्टेंगल का करता है या नहीं करता? मैम बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली नहीं करते. बाइसेक्ट करता है लेकिन परपेंडिकुलरली नहीं. बाइसेक्ट करता है लेकिन परपेंडिकुलरली नहीं. इज द स्टेटमेंट ट्रू? वेरीफाई योर Yes, ma'am. ज्योमेट्री. Yes, ma'am. For this only, ये 90 डिग्री नहीं है. दिस इज नॉट 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री. ये सारे 90 डिग्री होते हैं, ये 90 डिग्री नहीं होता है. इसीलिए सीबीएसई मेथड में, सीबीएसई के क्वेश्चन में कभी भी रेक्टेंगल नहीं दिया जाता है. ठीक है, रेक्टेंगल के ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको एंगल थीटा चाहिए. सीबीएसई के क्वेश्चन आप देखोगे रेक्टेंगल नहीं होगा. सीबीएसई के क्वेश्चन आपके लिए जो हमारे स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप देखोगे, आपके लिए सबसे इजी इक्विलैटरल ट्रायंगल. नेक्स्ट इट इज आइसोसेलेस परपेंडिकुलर वाला राइट एंगल ट्रायंगल. नेक्स्ट आपके लिए आ जाएगा ये वाला पेंटागन हेक्सागन, पेंटागन हेक्सागन. लेकिन कॉम्पिटिशन्स में जब आप एंट्री करोगे, स्टार्ट होगा ये सारे रैंडम ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल, कोन, सिलेंडर, सारे नॉन सिमेट्रिकल बॉडीज आगे आप फाइंड आउट करोगे. दिस इज द डिफरेंस. स्कूल एग्जाम क्या है और कंपटीशन एग्जाम क्या है. लेकिन यू शुड नो द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिसेस फ्रॉम द सेंटर फॉर ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर्स. ठीक है, मैम रेक्टेंगल में डायगोनल की लेंथ निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर देंगे हाँ. तो हो जाएगा. हो जाएगा. Yes. Yes, ma'am. रेक्टेंगल में आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये नहीं कि नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, बट इट इज टाइम टेकिंग. रेक्टेंगल में आपको क्या रहता है कि ये डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो. ये सपोज आपको L दिया हुआ है, ये सपोज P दिया हुआ है, आप कर सकते हो ये डिस्टेंस. लेकिन इसको एक डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसको सारे जब ऐड करोगे ना वेक्टर मेथड में 90 डिग्री में थोड़ा इजी होता है. सीबीएसई प्रीफर्स ओनली इजी न्यूमेरिकल्स. मैम Time पर भी डायगोनल लगेगा. अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो तो सीधा अगर मतलब जो आएगा वो रूट टी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 2 नहीं हो जाएगा वो डिस्टेंस? हाँ हो जाएगा, लेकिन आपको ये मास थोड़ी दिया जाएगा, यहाँ आपको चार्ज भी दिया जाएगा. इतने बड़े बड़े होगा. इस साइड में जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा ना, ये ऐसे 9 × 10⁻⁹, यहाँ 6 × 10⁻, ये सब जब एडिशंस करोगे ना तब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. Yes. जो 4 वैल्यूज दिया जाएगा बड़ा खतरनाक वैल्यूज दिया जाएगा, तो इसलिए ये एडिशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सीबीएसई लॉन्ग मैथमेटिक्स नहीं प्रीफर कर रहे हैं. मैथमेटिक्स वही प्रीफर बट नॉट टाइम टेकिंग. कॉम्पिटिशन्स में सारे टाइम टेकिंग मैथमेटिक्स होता है. तो दिस इज योर ज्योमेट्री पोर्शन. ज्योमेट्री पोर्शंस में आपको याद होना चाहिए, सपोज मेरा ये सर्कुलर रिंग है, मुझे मास एम होता है पूरे सर्कुलर रिंग का, तो मुझे यूनिट मास, इसके रेडियस है r, यूनिट मास और मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा? मास पर यूनिट लेंथ अगर मैं लूंगी, मास पर यूनिट लेंथ m/πr². मैम ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 2πr. इज वेरी गुड. m डिवाइडेड बाय 2πr. इसका मतलब क्या है? ये सर्कुलर रिंग है, ये रिंग के बाउंड्री, दैट मींस इट इज योर
मास आपका सिर्फ इसी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल मास m डिस्ट्रीब्यूट है 2 पाई r सर्कम्फरेंस सॉरी हाँ सर्कम्फरेंस के ऊपर, तो यूनिट मास हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 2 पाई r। इन द सेम वे if it is this of mass m, radius r, what is your mass per unit length? m pi r square. मास पर यूनिट लेंथ नहीं, यूनिट एरिया हो जाएगा। मास पर यूनिट एरिया कितना होगा? Yes, ma'am. M by pi r. पाई आर pi स्क्वायर। square. ये आपका मैथमेटिक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मास पूरे एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ मास सिर्फ बाउंड्री में डिस्ट्रीब्यूट है। मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स का कितना यूज है। ओके, नेक्स्ट यू कम for the slope category. X-axis is here, Y-axis is here. If the graph is like this, how to find out slope? This angle is your theta. Theta is equivalent to tan theta. Is anyone? Y upon x. Why it is? Delta Sin y. theta. Sin theta is theta for small angles. इसका भी एक बड़ा सा इक्वेशन है, एनसीईआरटी के लास्ट पेज में मिलेगा आपको। साइन थीटा की पूरा इक्वेशंस है, उसमें से फॉर स्मॉल एंगल्स इट इज थीटा, tan theta is theta for small angles, but cos theta is anyone who can tell me whether cos theta is theta or not? Yes, tell me. Sin theta is theta, cos One. theta is theta or Cos not? theta is 1. Cos theta for small angles it is 1. Cos theta is not theta. साइन थीटा के इक्वेशंस एनसीईआरटी बुक यू आर हैविंग, इसमें मैथमेटिक्स जो करना है ना वो साइन थीटा सबसे एंड में दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक में आपको दिया हुआ है मैथमेटिक्स व्हाट यू नीड फॉर फिजिक्स, दैट इज एट द एंड ओनली। इफ यू आर हैविंग एनसीईआरटी बुक यू कैन सी सबसे लास्ट में साइन थीटा का इक्वेशन दिया हुआ है। साइन थीटा का इक्वेशन में थीटा कैसे हुआ इट वाज एक्सप्लेन देयर। ठीक है, साइन थीटा इज थीटा। हाउ टू फाइंड आउट स्लोप? एक आपके पास ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, ये ग्राफ को आप कैसे प्लॉट करोगे? टेल मी। अलोंग एक्स एक्सिस हम क्या लेते हैं? सपोज हमारे पास ओम्स लॉ ग्राफ है, यू ऑल हैव रेड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ था उसमें एक्स एक्सिस में क्या था? एनीवन हु कैन रिमेम्बर? r हम आई yes ma'am I. मैम VI ग्राफ था। इसका मतलब यू डोंट नो ग्राफ्स। ग्राफ का बेसिक सब के साथ नहीं हुआ। इस V इज इक्वल टू आई आर। ऐसे कितने ग्राफ आप पढ़े हो? और कोई ग्राफ आप फिजिक्स और केमिस्ट्री से बता सकते हो? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, पीवी ग्राफ, और कोई भी ग्राफ पढ़े हो फिजिक्स में? नो आइडिया। मोमेंटम का ग्राफ T graph, किसके ग्राफ है? जस्ट टेल मी। मैम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट, हाँ ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैं एक्स एक्सिस में क्या लेती हूँ? टाइम एक्स एक्सिस में मैं टाइम लेती हूँ। समवन इज टेलिंग एक्स एक्सिस इज फॉर टाइम एंड हियर इट इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। यू आर नॉट मैम बस श्योर। हम ले तो कुछ भी सकते हैं। एनीवन हु कैन टेल मी एक्स एक्सिस में क्या लेना चाहिए और वाई एक्सिस में क्या लेना चाहिए? x पे डिपेंडेंट लेना चाहिए और y पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। वेरी गुड। एक्स एक्सिस इज फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट है, और वाई एक्सिस इंडिपेंडेंट है। नाउ यू टेल मी, ओम्स लॉ में आपके हाथ में क्या है? व्हाट इज गिवन टू यू Current. टू वेरीफाई ओम्स लॉ? करंट करंट आपके हाथ में है पहले। वोल्टेज व्हाट इज इन योर हैंड? व्हाट यू चेंज? हम वोल्टेज डिपेंडेंट। आपके हाथ में जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। एक्स एक्सिस इज फॉर डिपेंडेंट और फॉर इंडिपेंडेंट? फर्स्ट यू क्लियर इट। 10th क्लास में कहीं पढ़ा हुआ है कि एक्स एक्सिस में क्या लेना चाहिए? डिपेंडेंट वैल्यू। एक्स एक्सिस हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यस मैम व्हाट यू मीन बाय द टर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बताओ? जो एक होता है आपको ऑलरेडी दिया होता है, दूसरा होता है यू फाइंड आउट।
टेल मी one factor is हम जो already गिवन given होता है वो इंडिपेंडेंट that होता है the और जो one फाइंड आउट which is करना होता है वो given is डिपेंडेंट dependent. होता है. आपको वी आई जो ओम्स लॉ आप वेरीफाई किए हो फिजिक्स लैब में, आई एम नॉट श्योर वेदर यू हैव गॉन टू फिजिक्स लैब और नॉट. तो इसमें आपको गिवन क्वांटिटी क्या था? आपके हाथ में एक एलिमिनेटर था, उसमें वोल्टेज चेंज कर रहे थे, और एक एमीटर था जिसमें आप करंट चेंज कर रहे थे. वोल्टेज चेंज कर रहे थे. वोल्टेज चेंज कर रहे थे आप, वोल्टेज चेंज कर रहे थे. ये कितने लोगों को याद भी नहीं है. आपको वोल्टेज चेंज करना था, तो वोल्टेज चेंज करना था मींस आपके हाथ में है. दिस वन शुड बी इंडिपेंडेंट. मैम ये प्रैक्टिकल 10th में था और हम स्कूल नहीं गए 10th में. तो कहाँ से आप किए होगे? आप तो ओ लैब से भी तो किए होगे, थ्योरी भी तो पढ़े होगे. कोई भी तो ग्राफ प्लॉट किया. आप कोई भी ग्राफ मुझे बता दो यहाँ. ओके ठीक है, ये वाला प्रैक्टिकल मैम ये बेस वेट मैं डिस्प्लेसमेंट कौन से फाइन ग्राफ दिखाती हूँ. आपके हाथ में क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, दोनों है. मैम एक्स पे इंडिपेंडेंट वैल्यूज नहीं नीचे. वही तो मैं बोल रही हूँ. बेसिक जो बोले हैं ना वो गलत बोले हैं. x शुड बी इंडिपेंडेंट एंड ये y शुड बी डिपेंडेंट. इसमें से आपके पास इंडिपेंडेंट में क्या है? v है. व्हाट इज विथ u? व्हाट शुड यू चेंज? और एक चीज मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ. इस क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा v इज प्रोपोर्शनल टू i और i इज प्रोपोर्शनल टू v. व्हिच वन इज करेक्ट? फर्स्ट वन. फर्स्ट वन. पहले आप वोल्टेज देते हो करंट आता है, या पहले आप करंट देते हो वोल्टेज आता है? हम वोल्टेज देते तो करंट आता है. तो कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ? हम करंट वोल्टेज पे. तो व्हिच वन इज करेक्ट? फर्स्ट वन. फर्स्ट वन में दिया है करंट इज प्रोपोर्शनल टू v और v इज प्रोपोर्शनल टू i दिया हुआ है. देखो हम व्हाटएवर पर यू वोल्टेज चेंज करते हैं तभी तो करंट चेंज होता है मैम, ओम्स लॉ में. तो व्हिच वन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मैम सेकंड वाला करेक्ट होगा पर एनसीईआरटी बुक्स में फर्स्ट वाला करेक्ट बता रहे हैं. वेरी गुड. सेकंड वाला इज द करेक्ट वन. ओम्स लॉ का ओरिजिनल वन इज द सेकंड वन. व्हाटएवर यू आर रेड अप टू क्लास 10th वो आपको सिर्फ इजीली कैलकुलेशन होने के लिए दिया हुआ है. आप 11th क्लास में पूरे नए टाइप में पढ़ोगे. व्हाट इज एक्चुअल दैट यू विल रीड हियर. फॉर दिस ओनली आई एम टेलिंग यू, ओम्स लॉ में I इज प्रोपोर्शनल टू V. आप खुद ही देखो, आपके हाथ में एलिमिनेटर है जिसमें आप वोल्टेज ग्रेजुअली चेंज कर रहे हैं. वोल्टेज चेंज करते ही आपके पास चेंज क्या हो गया? करंट. तो करंट की चेंज वोल्टेज के चेंज के ऊपर डिपेंडेंट है. ऐसा नो, वोल्टेज इंडिपेंडेंट है या V इज इंडिपेंडेंट. तो V शुड कम इन x axis. Ohm's law graph in class 12. You will read Ohm's law again in class 12. यहाँ आपका V आएगा x एक्सिस में, I आपका y एक्सिस में, और ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप आप फाइंड आउट करोगे, ये रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप 1 स्लोप इज रेजिस्टेंस. क्लास 12th ओम्स लॉ. ओम्स लॉ के ग्राफ में हमेशा V x एक्सिस में आना चाहिए और I y एक्सिस में आना चाहिए. Whatever you have read in class 10th, forget now. 10th क्लास आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स ये सारे इजियर मेथड करने के लिए कन्विंसिंग, जैसे पूरे सारे वेराइटीज के बच्चे समझ जाएं इसीलिए दिया हुआ है. नाउ यू टेक इट क्लियरली. x एक्सिस फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y एक्सिस फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल. देन यू टेल मी. आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चन हियर. यू कैन नाउ टेल मी. यू आर टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. आपके हाथ में क्या है? व्हाट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इसमें से क्या किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है? टाइम चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से और डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है टाइम के हिसाब से. चेंज होता है टाइम के हिसाब से. तो टाइम यू कैन टेक हियर, डिस्प्लेसमेंट you can take here. Displacement here, time here, and if you take this slope will give you velocity. Slope will give you velocity. Like this you can know how to plot the graphs. कोई भी इक्वेशन ले लो. आपके दिया है P, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. ये इक्वेशन आप क्लास 9 पे पढ़े थे, yes or no? Yes. यस मैम. इसमें से अगर
मुझे ग्राफ कैसे प्लॉट करना है? सपोज मैंने ग्राफ प्लॉट करना चाहती हूँ एम और वी के बीच में, एम और वी के बीच में, मैम ऐसे ही प्लॉट होगा। तो ये एम यहाँ लिखना करेक्ट है? नो मैम, नहीं मैम, मैम वी एम होगा, यहाँ वी होगा, वेलोसिटी मास चेंजेस इंडिपेंडेंट होता है। एम। अगर मैं यहाँ लिखूंगी P इज कांस्टेंट, अगर मेरे पास P इज कांस्टेंट लिख दूंगी तो एम वी इज कांस्टेंट, दैट मींस एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। हम ग्राफ के शेप में आएंगे, द शेप ऑफ द ग्राफ विल बी लाइक दिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है। फिजिक्स में हर चैप्टर, हर टॉपिक में आपको ग्राफ आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ, कौन किसके हिसाब से चेंज हो रहा है। टू थिंग्स यू शुड नोट डाउन, वन इज व्हाट इज इन आवर हैंड एंड व्हाट वी आर गेटिंग। हमारे हाथ में जो दिया हुआ है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो हमें मिल रहा है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट इज फॉर एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट इज फॉर वाई एक्सिस। इज इट ओके नाउ? ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं दे रही हूँ, अभी ग्राफ पूरी डिटेल्स में आएगा आपके पास, पूरी डिटेल्स में आपका चैप्टर 1 में जो डायमेंशन खत्म हो जाएगा, चैप्टर 1 में आपके पास ग्राफ आएगा। ठीक है, ग्राफ में हम लोग एक चीज कंक्लूजन डालें, जितने हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट विल कम इन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट विल कम इन वाई एक्सिस। आप कोई भी ग्राफ ले लो, इसमें से आप देखोगे व्हाट इज इन आवर हैंड, हम किसको चेंज करके किसको निकाल रहे हैं। जो निकाल रहे हैं दैट इज डिपेंडेंट, जो हमारे हाथ में है चेंज हो रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट। ओके, नाउ यू आर हैविंग द नेक्स्ट मैथमेटिक्स। इसके बाद आपका नेक्स्ट मैथमेटिक्स है दैट इज योर कैलकुलस। कैलकुलस आपका मेन मैथमेटिक्स पोर्शन जो न्यू है। कैलकुलस के साथ लिमिट्स भी है। इज एनीवन हु हैज डन इट? मैथमेटिक्स में लिमिट्स, कोई लिमिट्स कर दिया क्या? यस मैम। अच्छा, यू हैव स्टार्टेड कैलकुलस आल्सो। ये मैथमेटिक्स है, इसको यूज करके हम फिजिक्स के इक्वेशन करेंगे। ठीक है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएगा, लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए आएगा। ना इसी कैलकुलस में हमारे पास दो पार्ट है, वन इज योर डिफरेंशिएशन, one is your integration. I am giving you just a hints based on this. Differentiation होता है ना, you see, suppose आपको दिया हुआ है एक पूरे ब्रिज है, पूरा एक ब्रिज है, ब्रिज में ये जो रॉड्स है, जो रॉड्स है ब्रिज को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए, वो रॉड्स का डेंसिटी, मास डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए, तो आप क्या पूरे ब्रिज को तोड़ने लग जाओगे? और यू टेक ए स्मॉल कट, टेल मी। मैम रॉड्स लेंगे और उनको उनकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम एक रॉड का एक छोटा सा पीस लेंगे, उसका सारी चीज फाइंड आउट कर लेंगे, उसका डेंसिटी क्या है, मास क्या है, और कितने टेम्परेचर वेरिएशंस क्या होता है, एवरीथिंग विल फाइंड फॉर ए स्मॉल मास, देन विल इंटीग्रेट इट फॉर द होल वन। yes or no? तो जो स्मॉल हम छोटे छोटे टुकड़ा करके इसको ले रहे हैं ना, वो होता है हम डिफरेंशिएट कर दिए, उसको डिफरेंशिएट करके एक वाला पीस हम ले गए, फिर उसको हम इंटीग्रेट किए। दिस इज द लॉजिक। पहले हम इसको छोटे छोटे पीस में लेंगे, क्योंकि इतने बड़े चीज का एक बार निकालना मुश्किल है। उसके बाद उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ये दोनों चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल। आपको अगर ग्राफ ऐसे दिया जाता है, displacement versus time graph is like this, you name it as uniform motion, yes or no? What is uniform here? velocity. Velocity. If it is displacement versus time graph, then velocity is uniform. Velocity is the slope here, slope is uniform, velocity is the slope. ये एंगल थीटा हर जगह सेम है। ये जो एंगल थीटा आप ले रहे हो, वही थीटा ही आपका वेलोसिटी होता है। This angle theta is equivalent to tan theta, this is equivalent to slope, and this is equivalent to velocity. That remains constant. इसलिए इस ग्राफ का नाम दिया है यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। बट हैव यू सीन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ इन रियल लाइफ? हाँ, द्वारका के हाईवे में हो सकता है,
जितने बड़े बड़े हाईवे है, स्ट्रेट लाइन अगर है तो यूनिफॉर्म मोशन है. बट इफ यू आर मूविंग इनसाइड पालम No, कॉलोनी, ma'am. नजफगढ़ कॉलोनी, सम अदर कॉलोनी, सेक्टर 14 साइड, और जितने द्वारका में भी है जो गोल चक्कर के चारों तरफ जहां भी होता है, व्हाट इज द एक्चुअल लाइफ? एक्चुअल लाइफ में आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ये होता है लाइक दिस. हाउ टू फाइंड आउट द वेलोसिटी हियर? इज एनीवन हु कैन टेल मी? यहाँ तो हम Ma'am. स्लोप ले लिए. मैम बहुत छोटा पार्ट ले सकते हैं इसका. वेरी गुड. विल टेक ए स्मॉल पार्ट हियर. ये स्मॉल पार्ट को हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक. सपोज इट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी. ए टू बी में हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके स्लोप निकालेंगे. इसके ऐसे दो साइड से ज्वाइन करेंगे. जैसे दो साइड से ज्वाइन करेंगे. ये वाला साइड जो लेफ्ट हैंड साइड में है विल मार्क इट एज डेल्टा एस. जो ये लेफ्ट यहाँ एस है तो हम इसको डेल्टा एस मार्क करेंगे. और यहाँ जो है इसको डेल्टा. डेल्टा मीन्स स्मॉल. ये जो सिंबल मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया इसके मीनिंग ये ट्रायंगल नहीं, ये डेल्टा एस. इसको पढ़ा जाता है डेल्टा. डेल्टा एस स्मॉल वैल्यू ऑफ एस. डेल्टा एस और डेल्टा टी. आप इसको ये जो स्मॉल पीस हम लिए थे, ये स्मॉल पीस में आपके पास है डेल्टा. इसका अगर मैं स्लोप निकालूंगी तो ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा एस बाई डेल्टा टी. डेल्टा एस बाई डेल्टा टी दैट विल बी योर मीन, दैट विल बी डीवी. नहीं सी आपके पास वेलोसिटी आएगा. वेलोसिटी ऐसे लिखना पड़ेगा. लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्विवेलेंट टू ds by dt. डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. ये जो टर्म यहाँ लिखा हुआ है ना, ये डिफरेंशिएशन है. पहले सोचो कि डिफरेंशिएशन मुझे करना क्यों पड़ा, क्योंकि मैं एक साथ ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ का वेलोसिटी नहीं निकाल पा रही थी, तो मैंने डिफरेंशिएट किया. एज टेल मी मैम एवरेज लेना पड़ेगा ना पूरी ग्राफ का. हाँ व्हाट. उसके बाद मैं इंटीग्रेशन करूंगी. हाँ. एक छोटा पार्ट का ले लिया, उसके बाद मैंने उसको इंटीग्रेट कर दूंगी. जो इंटीग्रेशन है ना उसी का दूसरा नाम आपका एवरेज है और समेशन है. मैम Yes, बट इंटीग्रेशन के लिए तो सब यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब सारे स्लोप्स इक्वल होने चाहिए थे. नहीं, सारे स्लोप इक्वल होंगे तो इंटीग्रेशन का क्या जरूरत है? मैम आपने रॉड का एग्जांपल दिया तो उसमें तो सारे रॉड्स यूनिफॉर्म होंगे, तब हमने इंटीग्रेशन यूज किया. नहीं, आप एक से सोचो. आपके स्कूल की बस के पीछे देखे हो लिखा है एवरेज वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर. कभी देखे हो? सारे बस कभी भी 40 किलोमीटर पर आवर में चलता है? बाई मिस्टेक कभी कभी आ सकता है. नहीं, कभी 30 हो जाता, कभी 20 हो जाता, कभी 60 हो जाता, लेकिन एवरेज वैल्यू 40 दिया हुआ है. एवरेज वैल्यू डज नॉट मैच. तो जैसे आपका एवरेज लिया जाता है, समवन हैज टोल्ड इट, एवरेज लिया जाता है, ऐसे आपका इंटीग्रेशन लिया जाता है. यूनिफॉर्मिटी जहां नहीं होता है वहां इंटीग्रेशन जरूरत है. यूनिफॉर्मिटी जहां था वहां तो डायरेक्टली निकल गया एस बाई टी. ओके मैम. ठीक है. तो ये चीज जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आई हैव सिंपली गिवन यू द हिंट्स. नाउ वी विल डू इट इन डिटेल्स. हम इसको डिटेल्स करेंगे पहला डायमेंशंस खत्म करने के बाद. ये हमें जरूरत होगा तब हम आएंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बिफोर हॉलीडेज. ना इसी डायमेंशंस. ये डायमेंशंस क्या है जस्ट टेल मी. आपका पहला चैप्टर जो है दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस. इससे पहले व्हाटएवर इज गिवन इन एनसीईआरटी बुक यू गो थ्रू इट. एनसीईआरटी बुक आपका थोड़ा सा फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए दिया हुआ है, लेकिन सम स्टूडेंट्स दे हैव गिवन द कंप्लेंट, उसको पढ़ने के बाद फिजिक्स में इंटरेस्ट कम ही हो जाता है. जो चैप्टर 1 दिया हुआ है, चैप्टर 1 में आपको ये बता रही हूँ, चैप्टर 1 में आपको ये क्लियर किया है कि आपका यूनिट मास, अगर यूनिट मास पूछा जाता है, छोटा सा यूनिट आप 1 kg लेते हो फॉर स्टैंडर्ड आइटम्स. बहुत ही एक्सपेंसिव होता है तो 1 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम लाइक दिस यू टेक. बट टेल मी 1 kg, सपोज मेरे पास पोटैटोज है, कितने पोटैटोज में 1 kg आ जाएगा? हु टोल्ड यू? एक दुकान में 10 पोटैटोज में आया, एक में 5 में आया, बड़ा साइज है, एक में 20 में आया. बट हु टोल्ड यू that this much amount is 1 kg? Who told you this much distance is 1 meter? मैम मेजरमेंट्स. तो कौन किया और उसको लोग बिलीव भी कैसे किए? And who told you ये टाइम ड्यूरेशंस
आपका 1 सेकेंड है। पहले 1 सेकेंड आया, तब 1 मिनट, 1 आवर, 24 आवर, 365 डेज आ गया। लेकिन जो 1 सेकेंड ड्यूरेशन जो दिया, वो कैसे दिया? जो 1 kg का अमाउंट डिसाइड किया, 1 पाउंड के अमाउंट डिसाइड किया, 1 मीटर लेंथ के ये डिसाइड किया कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होगा। हाउ दे हैव डिसाइडेड? वो सारे हिस्टोरिकल आइडिया दिया हुआ है, कितने साइंटिस्ट उसको प्रूव किए हैं। ये नहीं कि कोई एक बोल दिया। मैं आज बोल दूंगी मेरे पास, ये इंडिया में अभी भी चल रहा है। इन सम स्टेट्स इफ यू गो, दे डोंट नो 1 kg इज दिस वन। वो कुछ भी सामान आते हैं, रोड साइड में उसको रख लेते हैं और ऐसे ही बेचने स्टार्ट कर देते हैं। ये 10 रुपया, ये 10 रुपया, सारे 10 रुपया है पोटैटोज, आई एम टेलिंग। लेकिन उसमें से छोटा होता है तो थोड़ा बढ़ा देते हैं, बड़ा होता है तो उसमें कोई वेइंग स्केल नहीं होता उनके पास। अभी सिर्फ वेइंग स्केल इंडिया में जितने लोग हैं ना, उससे ज्यादा वेराइटीज का वेइंग स्केल है। अभी एवर सीन इट? सारे वेइंग स्केल में सेम चीज को लेकर मेजरमेंट करो, अलग अलग आएगा। इन आवर स्कूल वी आर हैविंग स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस सपोज मेरे पास चाहे 100 भी है, लेकिन सब में एक ही चीज का वेट सेम आना चाहिए ना। आज तक हमारा रिकॉर्ड है, हमारे पास नियरली 60-70 स्प्रिंग बैलेंस है। एक ही वेट को लेके बच्चे सब में देते हैं, किसी में सेम नहीं आता, किसी 2 में सेम नहीं आता अभी तक। तो एक दुकान से सामान खरीद के दूसरे दुकान में जाओ, आपका वेट वेरिएशंस, वेइंग स्केल में ये कैलिब्रेशन गलत किए। तो इसके मीनिंग क्या है कि कितने अमाउंट एग्जैक्टली 1 kg हुआ, दैट वाज डिसाइडेड, यूनिवर्सली डिसाइडेड। ये नहीं कि इंडिया में 1 kg तो यूएस में 1.5 kg हो गया। लेकिन उसको डिसाइड करने के लिए साइंटिस्ट कितने टाइम लिए हैं, हिस्टोरिकली क्या क्या लिए हैं। व्हाट आर द स्टैंडर्ड आइटम्स एट दैट टाइम? ओनली सन एंड अर्थ, द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड प्लैटिनियम इरिडियम क्लॉक। तो ये सारे हिस्टोरिकल चीज आपका चैप्टर 1 में दिया हुआ है। दोज हु आर हैविंग थ्योरेटिकल इंटरेस्ट इन फिजिक्स, थियोरेटिकली जिसका फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, यू विल एंजॉय इट। एनीवन इंटरेस्टेड for theoretical physics? Coaching centers will give you only mathematical physics, but CBSE will give you theoretical and mathematical both. I think you should go through that chapters. Then comes units. Now you tell me, what is the use of units? कोई practical use है units का? अगर नहीं देते तो नहीं चलता। यस मैम। नहीं देते तो चल जाता। 1 kg मैम नहीं चलता। नहीं चलता। हम नहीं तो लोग आके मांगेंगे 1 मीटर मिल्क। सी हाउ इट इज absurd now, because it should be liter, kg, but not in meter. Units are required for uniformity, units and dimensions. Yes, what are the SI units now? Tell me, CGS का मीनिंग क्या है, MKS का मीनिंग क्या है, SI क्या है? CGS is your centimeter, gram, second. MKS is your meter, kilogram, kg and second. SI system is your S system international, D फुल फॉर्म। सिस्टम भी ऐसे लिखा जाता है, इंटरनेशनल D। एस CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, मीटर, केजी, सेकंड। SI यूनिट्स कितने फिजिकल क्वांटिटीज के लिए दिया हुआ है? क्लास 9 7। What are these 7 things? meter, kilogram, second, Mass, length, then temperature, time, then Current. current, Temperature. then temperature, और amount of friction, mass, length, time, current, luminous intensity, luminous intensity, then amount of substance, और क्या रह गया? मास को मैंने m लिख रहा हूँ, तब तक सोच लो l, टाइम को अमाउंट t, ऑफ सब्सटेंस, करंट आपका एम्पियर, टेम्परेचर Time is small t. केल्विन, yes, amount of Time is small. amount of substance था ना? नहीं, यस मैम था। yes ma'am, yes, amount of substance is your mole, luminous intensity l, कैंडल, और कितना रह गया? हो तो गया।
Luminous intensity is your candela. Candles. Candela, candela, the units. And here it is mole. Mass is your kg. You can write. Mass is your kg. Kg, length is your meter. Time is your second. Current is your ampere. Temperature is your Kelvin. Candela and mole. These are the 7 standard units internationally accepted. You are having another system also, that is your FPS. What is FPS? Any idea? No idea. This is your feet, pound and second. British system. CGS, MKS and FPS. 3 सिस्टम था. सबको इकट्ठे करके SI सिस्टम दिया हुआ है. These are the units. Dimensions क्या है? जो see here. Suppose आपके पास length है. Length आप यूनिट अगर पूछा जाएगा तो यूनिट आप लिखोगे किलोमीटर और मीटर. Suppose it is मीटर. लेकिन डायमेंशंस पूछा जाएगा तो यू विल राइट L. डायमेंशंस में आप L ऐसे कैपिटल L लिखोगे. एक्चुअली लिखने का स्टाइल ऐसे है, लेकिन लिखते लिखते बच्चे थक जाते हैं तो ओनली L that is accepted. Only L is accepted for length. Next, in the same way, if it is for mass, you can write down all the dimensions. If it is for mass, then it is capital M. Next, tell me. Time is S. Time is T. Then we need these 4 mostly. Current is your, you can take A. If you follow H.C. Verma, it has taken I. A or I. If you are taking the next one, we need is your temperature. Temperature जो हमारे पास जरूरत है K. Physics में हम mostly यही जरूरत है. K is for Kelvin, not degree Celsius, not degree Fahrenheit. Okay? हमारे पास जो dimensions है, dimension इस टर्म में आता है. Now let us start using these dimensions in equations. आपको लिखना है वेलोसिटी. वेलोसिटी की फॉर्मूला आप पहले याद करोगे. वेलोसिटी के मीनिंग है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ, टाइम इज टाइम, तो ये हो जाएगा L बाई L T माइनस 1. इज इट ओके? वेलोसिटी के लिए सही है? एनी डाउट हियर? Those who are reading it for the first time, they should take part in discussion. Acceleration, acceleration velocity by time हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L T minus 1 divided by T. It is LT minus 2. Any doubt here? Those who are saying it for the first time. Next you can have force. सीधा आ जाओ force में. Mass into acceleration. What is the dimension of force? M L T minus 2. Is it okay? Tell me energy. Tell me energy. ML2 T2 minus. Energy, you can take the formula. Energy, you can take potential energy, kinetic energy. You can take electrical energy. Any energy you can take. Electrical energy, magnetic energy. All the formulas will have same dimension. M L square T minus 2. That is same as your work done. Energy is work done. Yes, any doubt here? Work done कैसे हुआ? Work done W. W is equal to force into displacement. Force क्या होता है? Mass into acceleration. Displacement आपका L. Mass के लिए M लिखो. Accelerations के लिए L T minus 2 लिखो और L. तो ये आपका क्या हो गया? M L square T minus 2. ठीक है? Dimensions कैसे लिखते हैं? We are giving you the hints. Tell me the dimension of momentum. Yes. Now you should increase the speed. Dimension of momentum. MLT minus 1. P is equivalent to mass into velocity. It is MLT minus 2. Okay. Minus 2 or 1? 1. Minus 1. जो 9th क्लास में पढ़े थे. Tell me the dimension of impulse. Ma'am, I have a doubt. Yes, tell me. Ma'am, when you have written force into speed, this MA, why did you replace L with S?
फोर्स इनटू स्पीड नहीं, दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके This one मैम. is displacement. Work done. 1/t Work mlt done is minus force into displacement. One who is asking work is force into displacement. Tell me, Okay, ma'am. Drishyam, are you any doubt here? Hey, wherever you are having doubt, you can ask me. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने डिस्प्लेसमेंट को L लिखा, फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन लिखा, मास को m लिखा, एक्सीलरेशन LT -2 लिखा और ये L लिखा. एनी डाउट हियर? हियर आल्सो इंपल्स, टेल मी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इंपल्स. mlt याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला डायमेंशन निकालने के लिए. अभी बुक्स खोलोगे तो 200 फिजिकल क्वांटिटीज का मिनिमम दिया हुआ है डायमेंशन. ये नहीं कि सबको रटने लग जाओ, डायमेंशन कोई रटता नहीं. डायमेंशन का एक क्वेश्चन 12th के बोर्ड एग्जाम में भी आता है 2 मार्क्स के. तो डायमेंशन आपको खुद को निकालना पड़ेगा. इक्वेशंस यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है. इंपल्स, एनीवन हु नोज द फार्मूला ऑफ इंपल्स? F into delta. mlt minus Very good. Someone is telling F into delta T. Someone is also telling change in impulse, a change in momentum. तो दोनों में मुझे इसका डायमेंशन बताओ. MLT minus V. सेम एज मोमेंटम, Yes, ma'am. क्योंकि फोर्स आपका MLT -2 है और टाइम है डेल्टा T आपका टाइम है T. इट इज द सेम फॉर्मूला MLT -1. जो मोमेंटम का फॉर्मूला है वही इंपल्स के फॉर्मूला है. क्वेश्चन आपको दिया जाएगा मल्टीपल चॉइस में. फाइंड आउट द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला. सेम डायमेंशनल फॉर्मूला में आपका मोमेंटम एंड इंपल्स एक टर्म आ जाएगा. यू हैव टू गिव ए टिक मार्क देयर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्टार्ट हो गया. सेम फिजिकल क्वांटिटीज, ए सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस. नाउ यू कैन राइट डाउन डेल्टा टी से टी कैसे आया? क्या? अच्छा, डेल्टा टी इज टी कैसे आया? ओके ओके. डेल्टा टी इज स्मॉल टाइम. टाइम के डायमेंशन, टाइम इज ए फिजिकल क्वांटिटी हियर, स्मॉल इज द अमाउंट. तो टाइम के डायमेंशन आएगा टी. ओके ओके मैम. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है. इसमें क्या है आपको अभी देखो, मैं यहाँ दिखा रहती हूँ कि आपको L + L L होगा, L - L भी L होगा, L × L L² होगा, L / L 1 होगा. ये किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? सेकंड नहीं आया. सेकंड वाला नहीं आया? आगे Yes, समझ में. ये बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग है डायमेंशन करने के लिए. L यहाँ क्या है? डायमेंशन में L क्या है? लेंथ है. Yes, ma'am. लेंथ में अगर आप लेंथ ऐड करोगे तो लेंथ ही होगा. यानी कि लेंथ में मैंने लेंथ ऐड किया तो वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया. लेंथ में लेंथ ऐड करूंगी तो लेंथ ही होगा. लेंथ से लेंथ माइनस करूंगी तो जो भी मिलेगा वो लेंथ ही होगा. लेंथ में लेंथ मल्टीप्लाई करूंगी तो एरिया होगा, डिवाइड करूंगी तो नंबर होगा. इजी टू अंडरस्टूड? ये डायमेंशंस अगर आपको करना है तो ये दोनों लॉजिक एक साथ देख लो. लेंथ में सिर्फ लेंथ ही ऐड हो सकता है. मैंने लेंथ प्लस एरिया नहीं कर सकती, लेंथ प्लस एरिया नहीं कर सकती. दिस इज रॉन्ग. फोर्स प्लस प्रेशर नहीं कर सकते. फोर्स में सिर्फ फोर्स ही ऐड होगा, फोर्स प्लस प्रेशर नहीं कर सकते. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम. फोर्स प्लस प्रेशर नहीं कर सकती हूँ, लेंथ प्लस एरिया नहीं कर सकती हूँ. लेंथ में सिर्फ लेंथ ही ऐड होगा, एंगल में एंगल ऐड होगा. जो फिजिकल क्वांटिटी, आपको एक चीज यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा. एक फिजिकल क्वांटिटी है. फिजिकल क्वांटिटी जैसे फिजिक्स, फिजिक्स हम किसको बोलेंगे? व्हाट इज फिजिक्स? एनी आइडिया फ्रॉम योर ओन? डोंट गिव मी दैट बुकिश आइडिया. फिजिक्स केमिस्ट्री से कैसे डिफरेंट है? हम नेचुरल फिनोमेना में वर्किंग में इस्तेमाल होती है फिजिक्स. एक होता है बॉडी का फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. एक का फिजिकल, सपोज ये मेरे हाथ में एक मार्कर है,
इसको देख के हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। आर यू लिसनिंग? इसको देख के मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, इसका शेप कैसे है, सिलेंडर, हम सिलेंड्रिकल, इसका कलर कैसे है, व्हाइट, इसके ऊपर क्या लिखा है, ब्लैक, कहीं रेड है कहीं ब्लैक है, और इसको मैं केमिकल प्रॉपर्टीज बोल दूं तो आप बोलेंगे इसमें इंक में क्या क्या केमिकल है, इसमें पानी में डुबाने से क्या होगा, अल्कोहल में डुबाने से क्या होगा, व्हिच वन इज इजियर टू फाइंड आउट, फिजिक्स और केमिस्ट्री? हम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज इजी है। कोई बच्चा आपके सामने, योर फ्रेंड, उसको देख के आप उसके बारे में A to Z बोल देते हो, ये देखने में ऐसे है, उसका बाल ऐसे, इसका नाक ऐसे, आंख ऐसे, कान ऐसे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है पता है? उसके साथ मिलने के बाद पता चलता है कि उसके अंदर वाला क्वालिटीज क्या है, कितना आपकी बात को इधर उधर करता है। ये सर नो टेल मी, कोई सबको समझ में आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज? खाली बोलते हैं इसीलिए, शकल पे मत जाओ। व्हाई दिस लैंग्वेज, व्हाट डज इट मीन? फिजिक्स होता है उसके आउटर साइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका शेप होगा, साइज होगा, डेंसिटी होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट मीडियम में, डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता है, डिफरेंट लिक्विड में कैसे। फिजिक्स है डेफिनेटली, इसमें फिजिक्स क्या होगा, इसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पास करूंगी, कितना गया, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पास करूंगी, लाइट रेज पास करूंगी, कितना अमाउंट गया और कितना रुक गया, वो फिजिक्स है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो यू शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको आएगा फिजिकल थिंग्स, ठीक है, फिजिकल थिंग्स जो हमारे पास है उसको हम बोलेंगे लेंथ, लेंथ हमारे फिजिकल है, लेंथ, मास, टाइम, ये फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज है, लेंथ है फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया अलग है, लेंथ के साथ में एरिया ऐड नहीं कर सकता। ये ओके ना? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ये सबको क्लियर हो गया? यस मैम। अगर ये क्लियर हो गया तो आप अभी कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हो। अभी नहीं, सी A plus B is C. C is pressure. C is pressure. What is the dimension of A and dimension of B? Can you tell me? Dimension of A and dimension of B. A plus B is equal to C. C को देखते तो फाइंड आउट किए कि C प्रेशर आ रहा है। प्रेशर की फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, mL/t-2 डिवाइडेड बाई एरिया होता है L²। तो ये हो जाएगा आपका mL, कितना हो जाएगा? -1t-2। Yes, anyone who can tell me what is the dimension of A, dimension of B? मैम यही होंगे। Dimension of हम A and MT dimension of B. ml -1 and t-2. Same as pressure Yes, or different? ma'am, same. Very good. A अगर प्रेशर, A प्रेशर होगा, B प्रेशर होगा, तब जाके C प्रेशर है। ये लॉजिक समझो, क्योंकि अभी मैंने समझाया था फिजिकल क्वांटिटीज अगर सेम होगा देन ओनली दे विल बी एडेड। ये अगर लेंथ होगा, ये लेंथ होगा, तब ये लेंथ होगा। एडिशन सिंबल मींस सिमिलर क्वांटिटीज, क्योंकि प्रेशर सिर्फ प्रेशर के साथ ही एडिशन हो सकता है, ठीक है। प्रेशर इज एडेड टू प्रेशर ओनली, फोर्स इज एडेड टू फोर्स ओनली। तो यहाँ दोनों में एडिशन सिंबल है। इसका मतलब जो डायमेंशन C का है सेम डायमेंशन आपका B का होगा और सेम डायमेंशन आपका A का होगा। तो डायमेंशन ऑफ A एंड B इज योर mL-1 t-2। तो इसका भी सेम है। आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A by B। क्वेश्चन देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A by B? What will be your answer? 1. No dimension. It is a dimensionless quantity. Yes, ma'am. Is the answer understood? अभी आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। सपोज मेरे पास है ax² + b √x इज इक्विवेलेंट टू फोर्स।
इसमें से x जो होते हैं ना, x लेंथ है, x इज लेंथ, x इज लेंथ, तो a और b का डायमेंशन मिल जाएगा। यस मैम। यस मैम। कैसे मिलेगा बताओ, मैं क्या करूंगी? मैम जो ax स्क्वायर का डायमेंशन होगा वो फोर्स का एक a डायमेंशन स्क्वायर भी फोर्स होगा, b अंडर रूट x भी फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स प्लस फोर्स इज इक्विवेलेंट टू फोर्स। तो a x स्क्वायर, x इज योर लेंथ, a l स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या है, ml t minus 2, देन व्हाट इज a क्या हो जाएगा, m l minus 1 t T2 minus 2। ऐसे b क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी b, ये पूरा आपका b अंडर रूट x, ml half t2 b minus l half is equivalent to m l t minus 2, तो b is equivalent to m l 1 minus half, that is your half only, yes or no, l half हो जाएगा और ये t minus 2। किसको डाउट है ये, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हम ब्लैक बोर्ड में लिख सकते हैं। आप देखो फिजिक्स जो होता है ना, 10th क्लास में फिजिक्स लिमिटेड सिलेबस होता है, 11th क्लास का एक ही चैप्टर के अगर आप लग जाओ ना पूरे साल खत्म नहीं होगा। आपको सिर्फ इसमें डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशंस और हाउ दिस क्वेश्चंस आर डन ये सीखना पड़ेगा, तब आप बहुत क्विक जा सकते हो। यस, गिव मी योर अटेंडेंस, अटेंडेंस जल्दी दो। यस, आरब, 2 आरब है, आरब शर्मा, रोल नंबर 1 आरब, टेल मी anyone is present here, Arab Sharma present, roll number 1 Arab not present, next Agnish Present ma'am. Aishwarya Present, ma'am. Akanksha Present ma'am. Akshita Present, ma'am. Aman Present ma'am. Aryan Present, ma'am. Ayush no Bhavya, Present, ma'am. जिनका माइक नहीं काम कर रहे they can raise their hands। Ayush I'm present. no response, Bhavya Present ma'am. I'm Ayush present. Ayush present, okay, next is Daman, Daman present, no Devans, no Drishyam, Present, ma'am. Gandhar, I'm present. Gautam, Present, ma'am. Jayant, Ma'am, Devansh present. Devans, Jayant present. Jayant present, okay, next Yes, ma'am. next is Kunal or Kanal, what's your name, it is not written clearly here, roll number 17 KNAL लिखा हुआ है, are you Ma'am, present, it must be Kanak. Present, ma'am. not present, Ma'am, present Kanak it is, ma'am. okay, Kunjal, Present, ma'am. Lakshya, Present, ma'am. Lina, Present, ma'am. Pragya,